ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਰਾਈਡ ਵਿਦ ਡੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰਾਈਡ ਦਾ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮੀਏ, ਪਰ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ 'ਤੇ 2 ਜਣੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਲੇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਘੁੰਮਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਈਏ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ, ਫਿਰ ਜਾਈਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਤੂਪਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ, ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਚਾਰ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਨੀਚੇ ਤੇ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਤੇ 3 ਜਣੇ। ਹੋਟਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ 3 ਰੂਮ ਲਈ 1 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਬਸ। ਸੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰਾਈਡਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨ ਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਤੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲਈ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਰਾਮ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਡਿਨਰ। ਸੋ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਨਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੜ ਪਏ ਹਨ 2 ਯੂਟਿਊਬਰ ਆਪਸ 'ਚ। ਸੋ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਲੱਡੂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੇੜੇ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ। ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਸੇ मैंने लेफ्ट वाले पास लेह का एयरपोर्ट। सो सिर्फ डोमैसटिक फ्लाइट्स इतने चल रही ने। इंडियन फ्लैग तो मतलब इंडियन फ्लैग तो थोड़ा ही दूर है हॉल ऑफ फेम। तो पहुंच चुके हैं हॉल ऑफ फेम, जो कि शहीद ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਚਾਰजेस ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਜ਼ਾਰਾ। जोधापुर फोर्ट की टिकट। सो बाकी लोग अंदर जा चुके ने ते मेरे को हेलमेट सी अज, ते हेलमेट जो है वो बाइक पे ही रख के जाना पैंदा है। सो देख सकते हो मिस्ट्री एंड मैजिक ऑफ लद्दाख, हिस्ट्री ऑफ लद्दाख। सो डेमोग्राफी
આગળ થઈ જાવ આપણે તોડી બીજા આવે ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪੌਟ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। આપણે ટીમ હારે દઈ ના ઓરિજિનલ એનિમલને બાંધવા માટેનું છે ઓરિજિનલ કાઢી નાખો सो माउंटेन रेंजेस। सो हिमालय लड़ी है, एक झंस्कार रेंज है, एक ट्रांस हिमालयन जिन्होंने कहते हैं, तो एक है काराकोरम रेंज। पूरी जियोग्राफी है लद्दाख की जिन्हें आप भूगोलिक स्ट्रक्चर कहते हैं। सो अलग अलग जो शहरों के नाम या पासिस ने उन्होंने नाम दे दिते, उन्होंने की मीनिंग है ये लिखा है। मीनस इतने सिर्फ लद्दाख की जी जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन वो लिखी हुई है, तुम देख सकते हो। मीनस बहुत ही वधिया जगह है, एक तरह नाल मैंने काफ़ी साढ़े लिए इन्फॉर्मेटिव है। तुम देख सकते हो पुराने कुछ पॉट्स वगैरह इतने पे ने, कुछ समान है उसका। सो ये ट्रैक्स बारे लिखे हुए हैं, किहड़े प्लेसिस तुसीं विजिट कर सकते हो लद्दाख दे विच। कारगिल झंस्कार वैली जिहड़ा सी असीं देख के आए, ते जिथे नदियां मिलदियां तो सुरावर फोर्ट, पत्थर साहिब गुरुद्वारा आपां पिछले ब्लॉग विच देख लिया है, दरास दा वार मेमोरीअल, चिकटन फोर्ट कारगिल ते डबल हम्प्ड कैमल, ये हले असीं जाना है इत्थे। सो नैक्सट जो रूम है लद्दाख कल्चर का, तो इस पासे पासिस बारे लिखे है। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਫਲਾਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਈਟ ਰੋਜ਼ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਸੋ ਆ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟੈਪ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਨ। ਸੋ ਸਨੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਪੀਪਲਸ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਜयांग, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਰੋਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਲਦਾਖ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲਦਾਖ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਲਦਾਖ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਹੈ वो लिखा हुआ है इतने। सो ये लिखा हुआ है बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ, बुद्ध धर्म ਨਾਲ रिलेटेड ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਸਿਸ ਜੋ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਤੂਪਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ प्लेयर फ्लैग्स, सो लक्की सिंबल्स जो ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। सो लैंप कॉम, अलग अलग तरह के लैंप, बैंगल्स उस टाइम दी। ਜ਼ੋਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਡਾਈਸ। ਸੋ ਸਿਆਚਿਨ ਰੋਜ਼, ਸੋ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਲੇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਐਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਹਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਰਡ, ਰਾਲੀ, ਬੂ, ਜ਼ੂ, ਲੈਦਰ ਕੈਪ, ਸ਼ੀਲਡ ਹੋ ਗਈ, ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਰੂਲਰਸ ਆਫ ਲਦਾਖ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਆਣੇ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਵੈਂਟਸ
ਸੋ ਲਦਾਖ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਕੈਂਪੇਨ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੈਂਪੇਨ ਬਾਰੇ। ਵਾਰ ਗੈਲਰੀਜ਼, ਹੀਰੋ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿੱਬਤ ਕੈਂਪੇਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਮੀਨਸ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਗਲਿੰਪਸਿਸ ਆਫ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1948 ਦਾ ਜ਼ੋਜ਼ਿਲਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪਿਕਚਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲੇਹ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। तो पाकिस्तानी मशीन गन, तो पाकिस्तानी रॉकेट लॉन्चर, परमवीर ਚੱਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। महावीर चक्कर जिन्होंने मिला सबसे पहले वॉर हीरोज गैलरी में आपको हार्दिक स्वागत करता हूँ। उस कोने से लेकर ये लास्ट कोने तक टोटल 7 परमवीर चक्र और 36 महावीर चक्र लगे हुए जिनको इस लद्दाख रीजन में मिला था। ओवरऑल इंडियन आर्मी में देखा जाए तो 21 परमवीर चक्र है, उनमें से 7 परमवीर चक्र इस लद्दाख रीजन में मिला था और 219 महावीर चक्र, उनमें से 36 महावीर चक्र इस लद्दाख रीजन में मिला था। इस तरफ आइए, ये एक पियानो के अंदर डिजाइन किया गया एक टेरेन मॉडल है। आप जान सकते हैं टेरेन मॉडल एक बड़े वाली जमीनी भूभाग को छोटा भूभाग में दिखाया गया है, इसलिए एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट तक काफी नजदीक दिखाई देता है। इस तरफ देखिए, ये एक प्लेन रीजन है, प्लेन इलाका। ये रीजन है पंजाब का।
और आप देख सकते हैं यहाँ पे पठानकोट है, यहाँ पे बिलासपुर। और जैसे ये प्लेन रीजन खत्म हो जाता है, यहाँ से हरियाली पहाड़ी वाला इलाका शुरू हो जाता है, ग्रीन माउंटेन्स, यानी कि ये पूरा हिमाचल प्रदेश का रीजन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मनाली है। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है ड्राई डेजर्ट एंड कोल्ड माउंटेन टाइप्स रीजन। यहाँ से शुरू होता है एक्चुअल लेह लद्दाख का इलाका। इस तरफ देखिए, यहाँ पे एक रेड कलर का लाइन दे रखा है, ये है यहाँ का नेशनल हाईवे जो कि पास में ही है। और इसका नीचे जो ब्लू कलर में है, ये इंडस रिवर जो कि चाइना से ओरिजिनेट होके आता है और इंडिया में बहते हुए फिर पाकिस्तान में एंट्री होता है। और पाकिस्तान में एंट्री होने के बाद इसको सिंधु रिवर बोला जाता है। इस तरफ हिमाचल प्रदेश से एक रिवर निकलती है, जांस्कर रिवर, फिर जाके इंडस में मिलता है। यहाँ पे नाम दे रखा है संगम, आपने सुना होगा संगम जी। इस तरफ जो 99 में कारगिल वार हुआ था, इसी 3 रीजन पर, कारगिल, बटालिक और द्रास, इसी 3 रीजन पर 99 में कारगिल वार हुआ था। इस तरफ जितना भी ग्रीन पिलर में दिखाई दे रहा है, ये पूरा पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको आजाद कश्मीर भी बोला जाता है। जहाँ पे ब्लू लाइट जल रही है, ये आपका करंट लोकेशन है लेह। यहाँ का मुख्य प्रमुख 2 ही एयरपोर्ट है, लेह एयरपोर्ट और प्रतापपुर एयरपोर्ट। और यहाँ पे स्थित है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरवेल पास, खारदुंगला पास, 18,370 फीट की एल्टीट्यूड में है। उसके बाद चांगला पास। इस तरफ जितना भी ग्रे पोर्शन में दिखाई दे रहा है, ग्रे पार्ट, ये पूरा हमारा ग्लेशियर रीजन है, जहाँ पे हमारा सिएचिन ग्लेशियर भी मौजूद है। इस तरफ सिएचिन ग्लेशियर का बेस कैंप है ये है के पास, काराकोरम पास, जो कि काराकोरम रेंज में है। और यहाँ पे ब्लैक कलर का एक लाइन दे रखा है, ये लाइन है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना की तरफ में है। और ये पार्ट पूरा अक्साई चीन का, जो 1962 से पहले ये नोमैंस लैंड था। 1962 के बाद ये चाइना आर्मी ने ऑक्युपाई कर लिया गया, यहाँ पे उनका आर्मी कंट्रोल करता है। ये जहाँ पे ब्लू लाइट जल रही है, पूरा पेंगन लेक है। यहाँ तक पेंगन लेक टोटल 135 किलोमीटर की लंबाई में है। उनमें से 35 किलोमीटर अपना इंडिया वाला पोर्शन, बाकी 100 किलोमीटर चाइना का। लेकिन जो इंडिया वाला पोर्शन है काफी ब्रॉड इलाका में है, और चाइना वाला उनका लंबाई में तो, लेकिन उनका नैरो में है। लेटेस्ट 2020 में जो चाइना इंडिया डिस्प्यूट हुआ था इसी रीजन पर, गलवान वैली, आपने सुना होगा गलवान वैली में, यहाँ पे हमारा 20 जवान शहीद हुए थे। उनमें से एक कर्नल बिकमुल्ला संतोष बाबू साहब, जो कि सोरा बिहार का सीओ साहब था, कमांडिंग अफसर, उनको लेटेस्ट इस लद्दाख रीजन में महावीर चक्र मिला है। आप बाद में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सिविल विजिटर्स के लिए पेंगन लेक तक अलॉट किया गया है, यहाँ तक जा सकते हैं घूमने के लिए। इस तरफ सोमुरारी लेक है, यहाँ पे हॉर्नले रिवर। इस तरफ पाकिस्तान की तरफ आओगे तो यहाँ पे नुब्रा वैली, डिस्क्रिट मोनास्ट्री, उसके बाद तुर्तुक विलेज। कहा जाता है कि इंडिया का लास्ट विलेज तुर्तुक विलेज है, लेकिन तुर्तुक विलेज से भी 10-12 किलोमीटर आगे एक और विलेज है, थांग विलेज। थांग विलेज तक जा सकते हैं घूमने के लिए, वो काफी पीओके के पास में ही है। वहाँ से पाकिस्तानी पोस्ट और पाकिस्तानी विलेज दिखाई देता है। इस तरफ जोजिला पास, जो कि श्रीनगर से आते समय इसी पास को क्रॉस करते हुए आना पड़ता है लेह में। और पूरा लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह डिस्ट्रिक्ट, एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट। ईस्टर्न लद्दाख और वेस्टर्न लद्दाख आप बोल सकते हो। और आप जान सकते हैं लेह डिस्ट्रिक्ट इंडिया का 2nd लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। थैंक यू। ये कैमरा जितना भी है, आप इसका फोटो ले सकते हैं, हमारे बंदे का फोटो नहीं लेना है। ठीक है। अगर फोटो दिख गया तो फिर डिलीट करना पड़ेगा, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, सर, छोड़ दीजिए। शुरू करने से पहले मैं आपको 1-2 बात बता देता हूँ कि आप वीडियो इसका बना सकते हैं आराम से अपने फोन में। ठीक है, मेरा वीडियो मत बनाइएगा। ठीक है, शुरू करने से, हाँ, ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये है क्या? आपको क्या लगता है? ये आपकी सोच। These are all hills जहाँ पे फाइट हुआ है कारगिल का। करेक्ट? फाइट? यस, वॉर नहीं, सिंगल फाइट? वॉर नहीं, नो वॉर, इट्स नॉट फाइट, वॉर, फाइट इज अ वाइल्ड वर्ड, वॉर। हाँ, तो उसके बारे में कुछ एक पॉइंट, 99 जो कारगिल वार हुआ था उसके बारे में मैं शुरुआत से, शुरू कब हुआ और खत्म कब हुआ, इसके अंदर मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन आप शांति से एकदम शोर ना करके सुनिएगा प्लीज। ठीक है मैम, चलिए शुरू करने से पहले बार जोश मैंने बता दिया, दिमाग अब आपकी जोश की बारी है। मुझे जोश देखना है आपके ऊपर, आप पे है कितना। एक से बोलेंगे भारत माता की, बाकी बोलेंगे जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर बहुत अच्छा जोश था, एकदम बहुत अच्छा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जोश ऐसे नहीं होता। भारत माता की जय ऐसा नहीं बोला जाता पॉकेट में हाथ डाल के या फिर हाथ बांध के। ऐसे कैसे बोलते, जैसे मैडम ने बोला, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
पहले अच्छा था या अभी अच्छा है? जोश पैदा करना पड़ता है, ठीक है? आगे बहुत जोश आएंगे अभी। जो भी मैं आपसे पूछता हूँ इसके बीच में, तो मुझे जवाब उस जोश टाइप का देना है। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे जवाब भी ऐसी चाहिए। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं। सियाचिन कारगिल गैलरी में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कोने से लेकर वो लास्ट कोने तक 99 में जो वार हुआ था उसके दौरान जितने भी ऑपरेशन हुए उनकी सारी संपूर्ण जानकारी आपको ऐसे बोर्डों से दी जा रही है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके पीछे सियाचिन गैलरी है। सियाचिन में एक जवान कैसे सर्वाइवर करता है, कैसे रहता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप हमसे बाद में कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी आपको समझ में ना आ रहा हो। सामने शोकेस में रखे हुए कुछ एक वेपन है, वो वेपन थे पाकिस्तान के, जो कि 99 के वार में इंडियन आर्मी ने कैप्चर किए वेपन, वो भी आप देख सकते हैं। ये एक साइन मॉडल है। इंडियन आर्मी साइन मॉडल तब बनाती है जब कोई ऑपरेशन लॉन्च करना हो या फिर ऑपरेशन करने के बाद किसी को डीप ब्रीफिंग देना हो। जैसे कि मैं आप सभी को दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये है रोड, कोई कच्ची रोड और कुछ पक्की रोड, जिसमें नेशनल हाईवे भी शामिल है। जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये रिवर है, कुछ छोटे रिवर और कुछ बड़े रिवर। दो बड़े रिवर आ रहे चाइना से, इंड्स रिवर और सिंगो रिवर, जो चाइना से होता हुआ इंडिया की तरफ आ रहा है। और एक आ रहा है लास्ट में सिगर रिवर, पीओके से, जो पीओके से होता हुआ इंडिया की तरफ आ रहा है। रेड लेटर में कुछ नाम लिखे हुए हैं, रेड लेटर में जैसे सीगर रिवर। रेड लेटर में कुछ नाम लिखे हुए जैसे गुलतारी, गोल, मतियाल, बिजोट, मरोल। ये है पीओके के कुछ एक गांव जो कि पीओके में अभी वहां पे मौजूद है। जो एरो मेरी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो है एलओसी। एलओसी का फुल फॉर्म क्या है? कैसा? लाइन ऑफ कंट्रोल। 99 के वार से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट, एक समझौते में सिग्नेचर हुआ था कि ज्यादा बर्फ पड़ते समय यानी विंटर्स के दौरान में कोई भी सेना ऊपर पोस्टों पे नहीं जाएगी, न इंडियन आर्मी और न ही पाकिस्तान के रेंजर्स। उनको रेंजर्स बुलाता है। क्या बुलाता है? रेंजर्स। एग्रीमेंट के हिसाब से इंडियन आर्मी नीचे बेस में डाउन हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या उस टाइम ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने छुपते छिपाते धीरे धीरे हमारे कुछ एक पोस्ट ऑक्युपाई कर लिए, जिस टाइम हम एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे पोस्ट में डाउन हो चुके थे। वो पोस्ट कौन से ऑक्युपाई वाले आप देख सकते हैं, दरास में पॉइंट 4875, टाइगर हिल 5140 और टोलोलिंग। नेक्स्ट कारगिल में 5608, कक्सार और मजदास और बटाली के कुछ एक सेक्टर जैसे जुब्बर हिल्स, मुंटो डालो, खालूबर और यलदौर। अभी पाकिस्तान ने जितना ऑक्युपाई करा था कर चुका था। अभी इंडिया की बारी इसको रिकैप्चर करने के लिए तो उसकी शुरुआत करी गई पटाली सेक्टर से 2 मई को। 99 का जो वार हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी 2 मई से, ठीक है। और पहला ऑपरेशन लॉन्च किया गया मुंटो डालो के पास 15 मई को। मुंटो डालो के पास 15 मई को पहला ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन से पहले शुरुआत कब हुई थी? 2 मई को। वो कैसे हुई, कैसे हमको पता चला कि पाकिस्तान हमारी पोस्ट को ऑक्युपाई कर चुका है? तो छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। जब बटालिक में क्या है, एक चरवा मतलब भेड़ बकरी चराने वाला, उसको बोलते चरवा। उसने क्या, उसका नाम था ताशीनामा, उसका नाम था। उसने क्या किया, मुंटो डालो में जब वो भेड़ बकरी चला रहा था तो वहां पे कुछ हरकत देखी उसने लोगों की। 7-8 लोग पठानी सूट पहने हुए लंबे चौड़े पत्थरों से बंकर बना रहे थे। जब उसने कंफर्म कर लिया कि वो इंडियन आर्मी नहीं है तो उसके बाद उसने फटाफट जाकर बटालिक में जो सेना बैठी हुई थी एग्रीमेंट के हिसाब से, उन्होंने उनको इन्फॉर्मेशन दी कि मैंने वहां पे कुछ देखा है ऐसा हरकत। जब वो इंडियन आर्मी को पता चला तो इंडियन आर्मी में क्या हरकत शुरू हो गई, तो वहां पे टीम बनाई गई। एक अफसर 10 जवान की। आपने अफसर साहब का नाम सुना होगा, कैप्टन सौरभ काले साहब। जी सर, सुना है? क्या नाम है उनका? सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया साहब का नाम सुना है ना? हाँ, तो उन्होंने क्या अपने साथ 10 जवान लेके ऊपर मुंटो डालो के पास गए, लेकिन वो वापस नहीं आए। 11 के 11 सबसे शुरू हुआ वार, वहां से शुरू हुआ था शुरुआत। और जब पहला मुंटो डालो में ऑपरेशन किया गया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। सफेद सागर। सफेद सागर इसलिए रखा गया वहां पे नाम, ज्यादा हाइट होने के कारण एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलकर वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया और उसको सक्सेस बनाया। और पाकिस्तान ने जितने भी बटालिक सेक्टर के जगह जमीन पोस्ट कैप्चर किए थे, ऑक्युपाई किया था, उसको 4 के 4 रिकैप्चर कर लिया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दरास। दरास में टोलोलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि नेशनल हाईवे आ रहा है, जो जिला दरास, कारगिल, लेह लद्दाख, सियाचिन। अगर पाकिस्तान टोलोलिंग में कैप्चर कर लेता तो आज जहां पे हम लोग सब खड़े हैं वहां पे कौन होता? पाकिस्तान। ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओपी विजय।
.4875 टाइगर हिल 5140 और टोलोलिंग इसमें शामिल थे। आपने लेटेस्ट में एक मूवी भी देखी होगी, कौन सी? शेरशाह, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा साहब भी शामिल हुए थे। उनको टास्क मिला कि .5140 रिकैप्चर करने के लिए, और उन्होंने रिकैप्चर किया भी। और करने के बाद उन्होंने अपने सीनियर को एक छोटा सा 4 लाइन का जो मैसेज था वो पास था, क्या था? हाँ, उसके बाद उनको नेक्स्ट टास्क मिला .4875 रिकैप्चर करने के लिए। रिकैप्चर तो हुआ, लेकिन वो करते करते वहाँ पे क्या अपने प्राण उन्होंने क्या शहीद हो गए। लेकिन उनके साथ जो फौज थी उन्होंने भी क्या मिलके वहाँ का पूरा क्या रिकैप्चर कर लिया। 4 के 4 आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में कारगिल 5608 कक्सार और मजदास में लास्ट में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये ड्यूरेशन लड़ाई का वार का टाइमिंग 2 मई 42 से शुरू हुआ था और 26 जुलाई जाके कारगिल में खत्म हुआ था। पाकिस्तान ने जितने भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्युपाई करके रखे होते हमारे, उसको रिकैप्चर करने के लिए इंडियन आर्मी को कम से कम 3 महीने का टाइम लगा। लेकिन उस 3 महीने के दौरान में सारा का सारा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहाँ से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले गया। इसलिए इंडियन आर्मी 26 जुलाई को विजय दिवस मनाती है। थैंक यू। तो चाइनीज़ वेपन्स जो इंडियन आर्मी ने 1962 ਚ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੋਲਜਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। souvenir shop। So 1947-98 जो इंडो पाक वार सी, इंडो पाक वार दे ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਾਈਨੋ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸੀ। तो 1965 की ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਵਾਰ ਹੈ। सो 1971 की जी इंडो पाक वार है।
ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਟ ਦਾ ਆਈਸੀ ਪੀਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰਾ ਜੋ ਡੈਮੋ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਖ ਹੈ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਸਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਊਂਟੇਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਸਕੀ, ਸਕੂਟਰ, ਇਹ ਸਕੀ ਪੋਲ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਟਰੀ ਫਲੇਮ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਲਜਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਜੋ ਮੈਪ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਬਾਇਨੋਕੂਲਰਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜੋ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ 1999 'ਚ। ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਐਡਵੈਂਚਰ ਪਾਰਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਲਵਰ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਦਾਖ ਰੀਜਨ 'ਚ 1975 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਦਾਖ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਵਾਰ ਸਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ।